وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورہ سعودی عرب مکمل کر کے پاکستان روانہ۔ وزیر اعظم نے ریاض میں ون واٹر سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ دنیا کو مستقبل میں پانی کی قلت سے بچانے کے لیے 6 نکاتی ایجنڈا تجویز کیا۔ ترقی پذیر ممالک کی ماحولیاتی تبدیلی کے خطرات پر بھی روشنی ڈالی۔ وزیر اعظم کی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات بھی ہوئی۔ پاک سعودی تعلقات کے مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ۔ پانی کے ذخائر تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ بحران پر قابو پانے کے لیے عالمی سطح پر کام کرنا ہوگا۔ سعودی دارالحکومت ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف کا ون واٹر سربراہی اجلاس سے خطاب۔ کہا پاکستان کے لیے یہ چیلنجز نئے نہیں، 2022 کے سیلاب کے بعد اس سے نمٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ریاض میں وزیر اعظم شہباز شریف کی فرانس کے صدر میکرون سے بھی ملاقات۔ وزیر اعظم کی ون واٹر سمٹ کے کامیاب مشترکہ میزبانی پر صدر میکرون کو مبارکباد۔ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت بھی دے دی۔ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کے بعد سینٹ میں قائد حزب اختلاف شبلی فراز نے بھی جوڈیشل کمیشن کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ شبلی فراز نے 32 FIRs میں نامزدگی اور عدالتی پیشیوں کے باعث جوڈیشل کمیشن سے استعفیٰ دیا۔ استعفیٰ چیئرمین سینٹ کو ارسال۔ سینٹ سے رکن جوڈیشل کمیشن کی نامزدگی کا فیصلہ کل ہوگا۔ سینیٹر علی ظفر کا نام جوڈیشل کمیشن کے لیے تجویز۔ ملک کے روشن مستقبل کے لیے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کیا۔ اندازہ نہیں تھا ہمارا استقبال گولیوں سے ہوگا۔ ہمارے 12 افراد شہید ہوئے۔ حکومتی رویے سے لگتا ہے ہم اس ملک کے باشندے ہی نہیں۔ شہریوں کے خلاف کارروائی سے ملک کی بدنامی ہوئی۔ ایسے حالات میں کون ملک میں سرمایہ کاری کرے گا؟ رہنما تحریک انصاف شبلی فراز کی ملک کی بڑی سیاسی پارٹی کے ساتھ برا رویہ رکھنے کا شکوہ۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کا دورہ عراق۔ عراق کے وزیر اعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور چیف آف ڈیفنس فورسز سے بھی ملاقات۔ باہمی دلچسپی کے امور، خطے کی صورتحال، دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال۔ ISPR کے مطابق عراق کی قیادت نے پاکستان کے مسلح افواج کی پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا۔ عراق کی قیادت کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے مسلح افواج کی قربانیوں کا اعتراف۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو عراقی مسلح افواج ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر گارڈ آف آنر بھی پیش کیا گیا۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے فلسطینی ریاست کے قیام اور اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے نکلنے کا مطالبہ کر دیا۔ 2 ریاستی حل کے قیام کے لیے جون میں بین الاقوامی کانفرنس بلانے کا بھی اعلان۔ جنرل اسمبلی نے 8 کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے قرارداد منظور کی۔ سابق کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ محمد عامر دوبارہ قطر میں پاکستان کے سفیر نامزد۔ ریٹائرڈ جنرل کو ابتدائی طور پر اگست میں متحدہ عرب امارات میں سفیر کے طور پر تعینات کیا گیا تھا۔ انہیں ترمزی کی جگہ مقرر کیا گیا ہے۔ ترمزی کو برسلز میں تعینات کر دیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق حکومت اور انتظامیہ پر برہم ہو گئے۔ 24 نومبر کے PTI کے احتجاج کے خلاف اسلام آباد کے تاجروں کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت۔ جسٹس عامر فاروق نے کہا آپ نے امن و امان بحال کرنا تھا مگر آپ نے پورا اسلام آباد بند کر دیا۔ عدالت نے آپ سے کہا تھا کہ شہریوں، تاجروں اور مظاہرین کے بنیادی حقوق کا خیال رکھیں۔ ہم PTI سے بھی پوچھیں گے کہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی کیوں کی گئی۔ PTI نے غلط کیا تو حکومت نے بھی غلط ہی کیا۔ درخواست گزار کا کیا قصور تھا؟ وزارت داخلہ سے رپورٹ طلب۔ سماعت آئندہ ہفتے کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ اسٹیٹ گیسٹ کی آمد پر ہی احتجاج کی کال کیوں دی گئی؟ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے سوال اٹھا دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب نے کہا تحریک انصاف کی تاریخ ہے کہ ان کا احتجاج یا ریلی پرامن نہیں ہوتی۔ اہم موقع پر احتجاج کی کال اس جماعت کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے۔ قانون کے مطابق ریڈ زون میں کوئی احتجاج نہیں کیا جا سکتا۔ PTI رہنماؤں کو جیل سے باہر نکلتے نہیں دیکھ رہا۔ نئے سال بھی جیل میں ہی رہیں گے۔
ख्वाबों के बादशाह मंजूर विसान ने बड़ी पेशगोई कर दी। बानी पीटीआई को खामोश रहने का मशवरा दे दिया। कहा, बानी पीटीआई के लिए बेहतर है कि खामोशी इख्तियार करें। पीटीआई धरनों से गुरेज करें और पार्टी मजबूत करने की कोशिश करें। थाना कोहिसार में 24 नवंबर के एहतजाज के मुकदमे में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस ने बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी हासिल कर लिए। 96 नामजद मुल्जिमान में शेख वकास अकरम, उमर अयूब, शेर अफजल मरबत का नाम भी शामिल। आलिया हमजा, सिमाबिया ताहिर, शुएब शाहीन, अली बुखारी भी लिस्ट में शामिल। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस स्पेशल टीमें तश्कील देगी। साबिक सदर आरिफ अलवी की 3 मुकदमात में 20 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का साबिक सदर को 50,000 रुपए के मुतल्लकों के एवज जमानत देने का हुक्म। अदालत ने अपने हुक्म में कहा कि इसकी मजीद समाअत के लिए मामला आईनी बेंच को भेजा जा रहा है। मुकदमात की तफसीलात समेत दीगर मामलात आईनी बेंच देखेगा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डी चौक मुकदमे के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। थाना सेक्रेटेरिएट में दर्ज मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात की निकालने की सदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। एहतजाज के लिए आईनी हक को इस्तेमाल किया। पुलिस ने दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया। डीप फेक वीडियोस को खवातीन को बदनाम करने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। पाकिस्तान में डीप फेक वीडियो से मुतालिक आगाही कम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़म बुखारी का फ्रांसीसी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा, नाजेबा वीडियोस के जरिए खवातीन को निशाना बनाया जाता है। हर पेशी पर लोगों को बताना पड़ता है कि मेरी वीडियो फेक है। साइबर क्राइम यूनिट की सलाहियत में इजाफा असर हाजिर की शदीद जरूरत है। महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर आ गई। मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एक बार फिर खुशखबरी सुना दी। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा, करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। मौशी इस्तेहकाम की बुनियादों को मजबूत करना है। मईशत में निजी शोबे का अहम किरदार है। हुकूमत निजी शोबे को पॉलिसी फ्रेमवर्क देगी। पीटीआई रहनुमाओं को पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। असद कैसर, शहरियार आफरीदी, शहराम तरक्की समेत दीगर पीटीआई रहनुमाओं के हिफाजती जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस वकार की समाअत। अदालत ने विफाकी इदारों से मुकदमात की तफसीलात भी तलब कर ली। एहतजाज से रोकने का किसी को हक नहीं। आइन हमें एहतजाज का हक देता है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर की पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू। बोले कि 26 नवंबर को जुल्म हुआ। आइन हर शहरी को अपने हक के लिए आवाज उठाने का हक देता है। विफाकी हुकूमत ने शहरियों पर गोलियां चलाई और शेलिंग की। तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। हमारा एहतजाज खत्म नहीं हुआ। कैद रहनुमा और कारकुनों की रिहाई पहली तरजीह है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जीलिना मेमन के पीटीआई पर तगड़े वार। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीटीआई को दुश्मनी पाकिस्तान के साथ है। उन्होंने पाकिस्तानी इदारों और जमातों को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की। इनकी तमाम साजिशें नाकाम हो गईं। पीटीआई क़यादत का हदफ मुल्क में अनार्की फैलाना है। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी पंजाब ने सूबे में स्कूलों के औकात कार्ड तब्दील कर दिए। सूबे के तमाम सरकारी और निजी स्कूल सुबह 8:15 से पहले खोलने पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन भी जारी। डीजी माहौलियात इमरान हामिद शेख का कहना है, खिलाफ वर्जी पर स्कूलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, जुर्माने और सजा का इतलाक भी होगा। इक़दामात माहौलियाती आलूदगी की रोकथाम के लिए किए गए हैं। विफाकी हुकूमत ने हज दरखास्तों की वसूली की तारीख में मजीद 7 दिन की तौसी कर दी। तर्जुमान विफाकी वज़ारत मजहबी उमूर का कहना है, दूर दराज इलाकों में हज दरखास्तों के दाखिले में मुश्किलात के बाइस हज दरखास्तों में तौसी की गई है। अब सरकारी हज स्कीम में दरखास्तें 10 दिसंबर तक नामजद बैंकों में जमा कराई जा सकती हैं।
ननकाना साहब में ट्रैफिक हादसा, एक खातून जाँ बहक, 6 खवातीन समेत 18 अफराद जख्मी हो गए। कोस्टर मुसाफिरों को मुल्तान से सियालकोट लेकर जा रही थी। मोटरवे M3 रेस्ट एरिया के करीब कोस्टर मजदा से टकरा गई। हादसा तेज रफ्तारी की वजह से पेश आया। खातून की लाश और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। 100 इंडेक्स 1,05,000 की हद उबूर कर गया। 502 पॉइंट्स के इजाफे से 1,05,061 पर आ गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,04,865 पॉइंट पर बंद हुआ था। मुल्क के शुमाली इलाकों और बलूचिस्तान में मूसलाधार बारिश और बर्फबारी से सर्दी मजीद बढ़ गई। सवात, वादिया कालाम, वादिया कागान और बालाकोट के पहाड़ रुई के सफेद गालों से ढक गए। कोयटा में सर्द हवाओं का राज। कराची में रात और सुबह के औकात में खुनकी में इजाफा हो गया। पंजाब के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में हल्की धुंध छाए रहने की तवक्को। जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट ने सदर की जानिब से मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज को कलअदम करार दे दिया। 300 में से 190 अरकान असम्बली ने मुल्क में मार्शल लॉ के निफाज के खिलाफ वोट दिया। पार्लियामेंट ने अक्सरियत राय से मार्शल लॉ मुखालिफ करारदाद मंजूर कर ली। जनूबी कोरिया के सदर ने मुल्क से मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान कर दिया। दौरा जनूबी अफ्रीका के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद, वनडे और T20 टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान होंगे। 10 दिसंबर से 7 जनवरी तक इस दौरों में कौमी टीम 3 T20, 3 वनडे और 3 टेस्ट खेलेगी। फखर जमान को किसी स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। बाबर आजम तीनों फॉर्मेट में शामिल हैं। और 2 रिवायती हरीफ आज फिर मद्दे मुकाबिल होंगे। जूनियर एशिया कप हॉकी का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तान ने सेमीफाइनल में जापान को 2 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। भारत मलेशिया को 3-1 से हराकर फाइनल में पहुंचा था। अस्सलामुअलैकुम। NTN न्यूज की अहम खबरों के साथ मैं हूं पलवशा महमूद और मैं हूं हाजरा रऊफ। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।